Good morning, students. Today we will discuss about the teacher as a researcher. As this topic indicate, a teacher is work as a researcher. He research in the class how teacher as a researcher, we are seeing here, the teacher read in the class, pose a question, review the literature, synthesize what the student learned, and next point we are seeing here, learning and teaching. He research. What he research? See the point, the first point, determine participants, choose your method, implement your work, and teacher gather all the datas. Then, after reading and research, leading, teacher lead the class and the knowledge. For leading, he reviewing the and improving, वो रिव्यू करता है, and with the help of reviewing, he improve himself the problems which face during the teaching and reviewing. वो रिसर्च करता है अपनी टीचिंग को रिव्यू करके, and then reflect in his work. For the reflection, he analyze his results, he draw conclusions and imbibed his learnings in the practice done by the students. So in this way you are seeing here leading quality of the teacher, that is combined with the three elements: read, research and reflect. The next we will see here the teacher as a researcher we are discussing here. So the concept of teacher as researcher is included in recent literature on educational reform, which encourage teachers to be collaborators and revising curriculum, improving their work environment and professionalizing teaching and policy. So these are some main important points to review by the teacher for the enhancement of his skill, that research collaborates in revising the curriculum, improving the work environment and जो teaching and policy को प्रोफेशनलाइज करता है. तो टीचर रिसर्च हैज इट्स रूट इन एक्शन रिसर्च. जो भी वो क्लास में एक्शन रिसर्च करता है वो उसका रूट टीचर रिसर्च है. टीचर रिसर्चर्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज दोज practitioners who attempt to better understand and their practice and its impact
on their student. So by researching and relationship between teaching and learning in their world work, the teacher as action researcher, we will see here in another, through another slide to the points. The teacher's research. Now we will discuss about teacher's research. So in teacher's research, what the teachers do, taking practical action to resolve classroom problem. During the teaching in his profession, teacher face many classroom problems. So practically he take action to resolve or solution for their problems which arise in the class. Next point, teacher as a facilitator. So teacher as a facilitator or a controller. In this point, we will try to emphasize that why the teacher as a facilitator? Because teacher help the students to overcome whatever difficulties they might encounter in the process of learning, and thus the teacher makes learning very easier for their student. So teacher as a facilitator. Teacher as a controller. This is also traditional role in which the teacher is the master of everything to take place in the classroom. The teacher has ability to control what the student do in the class, what and when they should speak, and in which activities they should participate in the class. That's why teacher is considered as a best controller. Teacher is a director. We know that teacher give guidance, he direct, he instruct the student to learn very easily. And teacher is also considered an active catalyst for the change. Teacher is a catalyst for the change in present scenario in teaching practice. And teacher in educational research emphasize a real problem faced by teacher during the. So there are so many problems arise in the class, and that problems are faced by the teacher and he get solution to solve such type of problems. Now we will discuss that from where problems arise. What are the sources of problems? So first, the problem regarding teaching. So there are so many problems regarding teaching arouse in the class, which we have also here pointed. Problem of comprehending the textbook. This is the problem faced by the students, that whatever written in the textbook they are not able to comprehend. That is the problem faced by the teacher. And appropriate teaching methods. So many problems to face the teachers, because when he teach any regional school and he is not familiar with the language, regional language of that particular area, so he is not able to apply the correct method, that which method he can apply to teach them. So which is appropriate teaching methods is also a problem for the teachers. टीचर पीपल रिलेशंस, आज से नहीं, फ्रॉम एंशिएंट टाइम इट इज़ द प्रॉब्लम बिटवीन टीचर्स एंड पीपल्स के जो रिलेशन हैं वो कैसे हैं, उस पर बहुत प्रॉब्लम है। आज हम देखते हैं प्रेजेंट सिनेरियो में
creating suitable environment for teaching. It's very critical and reviewing problem of the present scenario, that environment is not suitable for the teacher to teach the students so that they can able to enhance their skill. And the homework problem, right now the parents are facing so many problems in homework that they are getting more homework, not emphasizing in the classwork, lack of concentration. There are some mischievous students in the class and they disturb the class, so other students also don't be able to concentrate. So this is also the problem for the teacher faced during the time of teaching. So regarding teaching, these are the problems which are faced by the teachers. Next, second one, problem related to evaluation. अब टीचर का जो काम है, पहले तो वो टीच करेगा, टीच करने के बाद whatever the content has been taught by the teacher, now it is the time to assess that the students have received or imbibed some knowledge. So problem related evaluation. So वो इवेल्युएट कैसे करे, उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि रिलायबिलिटी नहीं है, उसकी प्रॉब्लम है. वैलिडिटी इवेल्युएशन मेथड की वैलिडिटी नहीं होती पूरी 100%. सो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इवेल्युएशन मेथड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और इसको हम डिटेल में इवेल्युएशन टॉपिक में डिस्कस करेंगे. मेकिंग टेस्ट, किस तरह वो टेस्ट पेपर बनाए जिस कंटेंट को टीच किया है, जिससे कि बच्चों का जो नॉलेज है वो प्रॉपर एसेस कर पाएँ. एनहेंसिंग स्टूडेंट्स अचीवमेंट्स, दिस इज़ आल्सो द मेन प्रॉब्लम इन इवेल्युएशन, कि स्टूडेंट्स ने जो अचीव किया है, जो नॉलेज उसने ऑब्टेन किया है, उसको और ज़्यादा एनहांस कैसे किया जाए. गिविंग मोर ऑप्शन इन क्वेश्चन पेपर, दिस इज़ आल्सो प्रॉब्लम, कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऑप्शंस दे दिए जाते हैं तो स्टूडेंट अपने माइंड को लॉजिकल वे से तो लगाएगा, लेकिन मेमोराइजेशन या क्रिएटिविटी उसके कम यूज होती है. इसलिए ये भी एक प्रॉब्लम है क्वेश्चन पेपर में ऑप्शन ज़्यादा दिए जाएँ तो. क्रिएटिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन टीचिंग एंड टेस्टिंग, ये बहुत बिग प्रॉब्लम इवेल्युएशन के अंतर्गत आती है, कि जो टीचिंग टीचर ने कराई है और अब जो टेस्ट कर रहा है, उन दोनों के बीच में कितना कोऑर्डिनेशन है. कई बार ऐसा भी होता है कि क्लास में टीचिंग बहुत कम होती है, लेकिन पूरे कैरिकुलम का टेस्ट ले लिया जाता है, तो ये कोऑर्डिनेशन से बच्चों के ऊपर बहुत और गलत असर पड़ता है. तो एज ए रिसर्चर टीचर को बहुत ही माइन्यूटली इन चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत होती है. एंड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट वी आर डिस्कसिंग हियर द प्रॉब्लम रिलेटेड टू को करिकुलर एक्टिविटीज़. आज जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ की इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आगे चल कर के बच्चा इसी के माध्यम से किसी न किसी फील्ड में अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आगे उसको कैरियर भी ऑप्शन का चांस मिलता है. तो उन को करिकुलर एक्टिविटीज़ को कंडक्ट कराने का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम टीचर के सामने आती है. तो जो हम यहाँ देख रहे हैं कि स्टूडेंट लेस इंटरेस्ट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़. अब आज स्टूडेंट का इंटरेस्ट कम हो गया है, क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं कि सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में ही भाग लेते रहोगे तो आप अपना कैरिकुलम कब पढ़ोगे. आपको आगे अगर इस फील्ड में जाना है तो उस फील्ड से संबंधित जो सब्जेक्ट है पर्टिकुलर, उस पर ज़्यादा फोकस करो. तो इसलिए स्टूडेंट कम इंटरेस्ट लेने लगता है उनके पूरे एक्टिविटीज़ को. और ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज़, दूसरी प्रॉब्लम आती है कि स्कूल में, इंस्टीट्यूशंस में जो टीचर्स एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कराते हैं, तो उनके लिए उनके पास ऑर्गेनाइज कराने के लिए मीन्स नहीं होते. एक्सपेक्टेड जो मीन्स है, जो उनको साधन चाहिए, उनकी कमी होती है. और जो मैन पावर चाहिए या जो भी मटेरियल चाहिए, उनकी डेफिशिएंसी के कारण वो लोग को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू इतना अच्छी टीचिंग नहीं करा पाते हैं. और ये को करिकुलर एक्टिविटीज़ का लैक के माध्यम से बच्चे आगे वो डेवलप और ज़्यादा नहीं हो पाते हैं. प्रॉब्लम रिलेटेड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट. अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के समय में,
क्योंकि जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है उससे संबंधित कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये जो गवर्नमेंट बॉडी ऑर्गेनाइज कर रही है या प्राइवेट बॉडी कोई ऑर्गेनाइज कर रही है, फिर मैनेजमेंट की क्वालिटी का है, ऑर्गेनाइज कर दिया तो उसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है या किस तरह से हो रहा है, वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम टीचर को ही फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए जो इस पॉइंट में हम देखेंगे क्रिएटिंग एजुकेशनल एनवायरनमेंट इन स्कूल। अब उससे एनवायरनमेंटल जो एजुकेशनल एनवायरनमेंट है स्कूल में वो क्रिएट नहीं हो पाता है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, मैनेजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कैसे एजुकेशनल एनवायरनमेंट स्कूल में तैयार किया जाए, इंस्टीट्यूशन में तैयार किया जाए। अप्रोप्रिएट सुपरविजन ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट एसोसिएशन। सुपरविजन मैनेजमेंट की कमी या स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की कोई कमी रहती है तो नहीं हो पाता है। तो जब टीचर्स और स्टूडेंट एसोसिएशन का अप्रोप्रिएट सुपरविजन नहीं होगा तो वो टीचिंग एनहेंसमेंट, नॉलेज एनहेंसमेंट स्टूडेंट में नहीं हो पाता है। लैक ऑफ फैसिलिटी इन लाइब्रेरी। आज लाइब्रेरी कहने के लिए हर इंस्टीट्यूशंस में लाइब्रेरी है, बट उन लाइब्रेरी का बेनिफिट स्टूडेंट्स कितना उठा पा रहे हैं, दैट इज़ द मेन एम। अब लाइब्रेरी को कंडक्ट कराने का मेन एम है कि स्टूडेंट्स उस लाइब्रेरी की हेल्प से ज़्यादा अपने आप को, अपना नॉलेज इनरिच कर पाएँ। लेकिन लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरियन मैडम क्लास लेने गई हुई हैं, वो बुक्स नहीं इशू करती हैं, या लाइब्रेरी में अच्छी बुक्स नहीं है जो जिससे कि वो टीचर भी फेड अप हो जाता है और वो इतनी अच्छी स्टडी नहीं करा पाता है या उसको इतना इनपुट देने के बाद आउटपुट नहीं मिल पाता है जितना कि वो एक्सपेक्ट करता है। अब प्रॉब्लम्स देखने के बाद हम देखेंगे कि जो एक्शन रिसर्च, अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं टीचर्स के सामने, तो अब वो क्या करें, एक्शन रिसर्च करें। तो एक्शन रिसर्च की कितनी सिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट ऑफ एक्शन रिसर्च इन लैंग्वेज टीचिंग। हम यहाँ लैंग्वेज टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज टीचिंग में एक्शन रिसर्च कितना सिग्निफिकेंट है उसके कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। सो द एम ऑफ एक्शन रिसर्च इज इम्प्रूविंग टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिस इन क्लासरूम। इट्स वेरी सिग्निफिकेंट ऑफ एक्शन रिसर्च कि टीचर उस पर रिसर्च करे, सोचे कि कैसे टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस को क्लासरूम में और ज़्यादा इन्हांस किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड एक्शन रिसर्च कंट्रीब्यूट चेंजिंग and redefining the traditional role of teachers. Now it is time to change according to new trends. So action research contribute changing, and action research promote teachers understanding of teaching. Whatever the deficiency is facing during the time of teaching, he can understand, then he can solve and find out the solutions and whatever the process, and he can enhance problem solving knowledge. So action research also helps teachers develop more effective and focused teaching. It's very important point कि टीचर जो है एक्शन रिसर्च के माध्यम से ज़्यादा इफ़ेक्टिव और टीचिंग के प्रति ज़्यादा वो फोकस्ड हो जाता है, तो उसका आउटपुट ज़्यादा अच्छा सोसाइटी में मिल पाता है। एक्शन रिसर्च ट्रेन टीचर्स टू ऑब्जर्व। टीचर्स अपनी टीचिंग को, अपने नॉलेज को वो ऑब्जर्व करने लगता है, उसको एनालाइज करता है, एंड उस ऑब्जर्वेशन और एनालाइजिंग से वो रिफ्लेक्ट ऑन प्रॉब्लमेटिक एरियाज इन देयर टीचिंग। उसके जो टीचिंग में जो भी प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं उसमें उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू वो इम्प्रूवमेंट करता है। थैंक यू।